Hello everyone, welcome you in this physics video, and in today's video we are going to learn how to find out the focal length of a convex lens. So over here that we are having the two method, one it is distant object method and second is over there plane mirror method. So with the help of this method we can find out the focal length of a convex lens. So let us to learn over here first how we can find out the focal length with the help of this distant object method. तो distant object method में क्या किया जाता है, एक distant object है, let us suppose that this is the distant object. तो distant object हमारे पास this can be a building, this can be any tree. Okay, so that could be any object, so it is that a distant object, and in front of it that we are going to keep, this is our convex lens. So over here this focal length we are going to determine of convex lens. ठीक है, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उससे क्या होती है, जो लाइट रेस है दे आर कमिंग पैरेलल. ठीक है, तो इससे जो लाइट रेस होती है दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो these rays are going to fall parallelly on this that convex lens. ठीक है, now when these rays falls on this convex lens, तो convex lens it converges the ray. ठीक है, so over here it will converge the ray, so these rays they will meet to each other. So where they will meet to each other, at that point we will place the screen. तो जहाँ पर ये जो रेस हैं ये एक दूसरे से मिलती हैं, उस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक स्क्रीन प्लेस करनी है. ठीक है, तो इस स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन ओवर है, तो इसलिए हमारे पास ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करेगा, इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की उस स्क्रीन के ऊपर एक इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन ये जो इमेज होगी उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के ऊपर, दिस विल बी इनवर्टेड, बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ नोन टू अस कि अगर रेस अपने आप कन्वर्स हो जाती है तो वो रियल इमेज बनाता है. रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, और उस इन्वर्टेड इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर बना सकते हो. इसका मतलब हुआ कि जो डिस्टेंट ट्री है या डिस्टिंक्ट जो बिल्डिंग है, इट्स इमेज यू कैन फॉर्म ऑन दैट screen. Okay, so this screen it could be a white paper which you can use, or either that it is a wall. Okay, so on which you can form the image of that distant object. Okay, so when this is image is that obtained on that screen, so that time the distance is measured between this screen and that lens. Okay, so this lens and screen distant it is equal to focal length. ठीक है, तो स्क्रीन और लेंस के बीच का जो गैप होगा वो फोकल लेंथ होती है. ओके, सो दिस इज फोकल लेंथ. सो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल वी कैन मेजर दिस दैट separation. Okay, so here it is optical center and the image is found on this screen which is inverted. So thus we come to know over here that how to find out distant object. तो distant object से parallel rays आती हैं and this lens it will form its image on the screen. So we will find the distance between screen and this lens. So this is equal to the focal length. Now there is a second method. So this second method we are having, it is plane mirror method. ठीक है, तो इस plane mirror method में हमने क्या करना है, we are taking over here, this is the convex lens, this is the convex lens. ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कैसा लेंस होता है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है. ठीक है, तो ये क्या करता है, रेस को कन्वर्स करता है. ठीक है, एंड बैक साइड ऑफ इट दैट हेयर आई एम यूजिंग प्लेन मिरर. ठीक है, तो इसके बैक साइड क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया. ठीक है, दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर ओवर हेयर. सो जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हमारे पास है, रिमेंबर ओवर देयर, जस्ट लर्न दिस वन, रिकॉल द प्रॉपर्टी. प्लेन मिरर के ऊपर अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करती है, इफ इट फॉल्स परपेंडिकुलरली, सो इट विल रिफ्लेक्ट इट बैक अलोंग द सेम पाथ. ये क्या करता है, उसको उसी
पास से वापस भेज देता है, जिससे वो उसके ऊपर फॉल कर रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कब ये ऐसा होता है, व्हेन इट इज गोइंग टू फॉल परपेंडिकुलरली। ठीक है, सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, वी आर गोइंग टू यूज इट ओवर हियर इन दिस डायग्राम। ठीक है, नाउ over here we want to find out the focal length of this convex lens. ठीक है, with the help of this plane mirror. So how we can find it out? तो हमने क्या करना है, इस लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी विल प्लेस दिस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेंस को ऐसी पोजीशन के ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसी पोजीशन के ऊपर रखना है जहां से जो रेस हैं, ठीक है, तो जहाँ से ये रेस जो है वो क्या करेंगी, इस लेंस के ऊपर जब ये फॉल करती हैं, ठीक है, तो फॉल होने के बाद ये क्या हो जाएगी, तो हमारे पास ये इस फॉल होने के बाद पैरेलल चली जाए एंड देन दे विल स्ट्राइक ऑन दिस मिरर। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर, हमने उस ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेस पे शिफ्ट करना है वेयर that the rays which goes from the object will fall on the lens and after refraction they become parallel। ठीक है, तो parallel हो जाती हैं and over there when these rays are going to fall on that mirror, तो मिरर के ऊपर जब ये फॉल करेंगी so they are going to form this angle 90 degree with the mirror। ठीक है, एंड इट इज ऑलरेडी सेड टू यू कि इफ दे विल फॉल परपेंडिकुलरली सो दे विल रिफ्लेक्ट बैक, तो इसलिए जो रे है ये क्या हो जाती है, वापिस होगी, दिस विल रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे नाउ दे विल फॉल अगेन ऑन द लेंस, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या करेगी, दोबारा से लेंस के ऊपर फॉल करती है एंड दिस कॉन्वेक्स लेंस ये क्या करता है, पैरेलल रेस को हमेशा कहाँ पे फोकस करता है, कहाँ पे मीट करवाता है, दैट पॉइंट इट इज इट्स फोकस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन रेस को वापस अपने उस पॉइंट के ऊपर जो फोकस है उसके ऊपर लेके आएगा। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर उसकी जो इमेज है ठीक इसके ऊपर बन जाएगी, दिस वॉज द ऑब्जेक्ट, और इसकी जो इमेज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर फॉर्म कर देगा। ठीक है, सो वी हैव टू ऑब्टेन सच अ पोजीशन। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पर, व्हाट इज सेड ओवर हेयर इन दिस मेथड, इस मेथड में बोला गया हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक प्लेन मिरर लिया, प्लेन मिरर के ऊपर अगर एक रे परपेंडिकुलरली फॉल करती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन होती है, हेयर इट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में जब ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ठीक है, सो वी गेट ओवर हियर कि हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको लेंस के सामने ऐसी पोजीशन पर रखना था जहाँ से जो रेस हैं जब ये लेंस के ऊपर फॉल कर रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती हैं, और ये जो पैरेलल रेस जब मिरर पे फॉल कर रही है तो ये परपेंडिकुलरली फॉल करे, तो परपेंडिकुलरली जब फॉल करेगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेगी, और रिट्रेस बैक करने पर वो दोबारा से लेंस पर फॉल कर रही है। एंड वी आर नोन फ्रॉम द रे रूल्स कि जो पैरेलल रेस होती हैं वो कहाँ पर जाकर के मीट करती हैं, इट इज़ ऑन द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो रेस हैं ये दोबारा से इस पॉइंट पर आकर के मीट करेगी, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है ठीक उसके ऊपर उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज, दिस विल बी द इन्वर्टेड इमेज। ओके, so thus now we can find out this distance with the help of meter scale। ठीक है, तो ये मीटर स्केल की हेल्प से ये जो डिस्टेंस है बिटवीन लेंस एंड दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन सेम बन रही है, सो देयरफॉर दिस विल बी द फोकल लेंथ, दिस विल बी द फोकल लेंथ। ओके, so thus we come to know over here the two methods by which we can find out the focal length of a given convex lens. Now here the important thing that you have to know, as we said that lenses are of two type, one it is convex lens while the second it is concave lens. Okay, so the focal length of this convex lens is positive while that of concave lens is negative। ठीक है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव जो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है।
ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट वी शुड टू लर्न ओवर हेयर, ये जो फोकल लेंथ है हमारे पास, ये डिपेंड कर रही है यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट रेडियस ऑफ दिस कर्ड पार्ट, ठीक है। तो देयर इज अ फार्मूला, दिस फार्मूला इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, ओके। तो ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंगली कि हमारे पास अगर ये एयर से जो रे थी वो किस में जा रही है, लेंस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था दैट इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू लेंस, ठीक है। रेस कहाँ से जा रही है, एयर से लेंस की तरफ जा रही है, सो इट इज -1 एंड इट इज 1/r1 -1/r2, ठीक है। दिस इज रिटन ओवर हेयर। तो ये जो हमारे पास R1 R2 दीज आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन कर्ड पार्ट के ये रेडियस आते हैं R1 R2, सो वी आर लुकिंग ओवर हेयर, मोर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मोर इज द फोकल लेंथ, मतलब कि जो लेंस जितना बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, जो लेंस जितना स्मॉलर होगा उसकी फोकल लेंथ भी उतनी छोटी होगी, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी कम टू नो ओवर हेयर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ओवर हेयर, ये जो फोकल लेंथ है हमारे पास, दिस इज आल्सो गोइंग टू डिपेंड ऑन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। सो एज मच देयर इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा ये होगा। बट वन थिंग यू विल फाइंड ओवर हेयर दैट इट इज़ द सेकेंड पॉइंट विच वी सेड दैट नाउ इफ वी सेड ओवर हेयर, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1 आ गया, तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, दैट टाइम फोकल लेंथ मतलब कि हमारे पास जो लेंस का जो मीडियम है और जो उसके बाहर जो मीडियम है, दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर हो जाते हैं, तो उस वक्त ये क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, 1 - 1 दैट विल बी 0, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी दिस विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, तो प्लेन शीट का जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सो ओवर हियर दिस इज when the lens will behave as प्लेन शीट, सो प्लेन शीट का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा, इट मीन्स जो लेंस के बाहर और जो लेंस दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो, तो उस वक्त हमारे पास ये जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट और ये एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करता है। दिस इज आल्सो यूज बाय द मैजिशियन टू शो देयर ट्रिक्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मतलब कि जैसे एक ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जिसके अंदर लेंस को इमर्स करते हैं, बट दिस लेंस विल नॉट बी विजिबल इन इट, ठीक है। तो उसमें लेंस दिखाई नहीं देगा, वैसे भी हमें दो मीडियम अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होती है, लेकिन अगर दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड सेम है, सो दैट वी कांट सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि आपने नोट किया होगा एयर, तो एयर में मतलब कि हमारे पास एयर यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन इफ़ वी आर गेटिंग वाटर मिक्स विद दैट, इफ वी आर गेटिंग ओवर देयर वाटर अलोंग विद एयर, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कहाँ से वाटर मीडियम शुरू होता है और कहाँ पर एयर मीडियम चल रहा था, ठीक है। सो देयर वी कैन से ओवर है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रही है, उस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और हमारे पास दिस वन कि ये एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा व्हेन दिस दैट नेचर ऑफ द मीडियम आउटसाइड एंड दैट लेंस विल बी सेम। Okay, so thanks for watching this video.